welcome to another episode of Term 4 exam semi-finals. हाँ, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या होता है? ये हमारी अर्थ है। अगर यहाँ पे दरार आ गई और इसके अंदर की जो लेयर है, कोर, बेसिकली अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं। पहला होता है क्रस्ट, इसके ऊपर हम रहते हैं। मेंटल, जिसके ऊपर मतलब जिसके अंदर हॉट रॉक्स होते हैं। लास्ट कोर, यहाँ पे कोर के अंदर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वाइब्रेशन हो जाती है कोर में, तब क्या होता है कि ये अर्थक्वेक्स को पैदा करती हैं। तो अर्थक्वेक्स बेसिकली होता है सडन शेकिंग और ट्रेमर कॉज ड्यू टू मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इनसाइड द अर्थ। अब जब दो लैंडफॉर्म्स एक दूसरे पर टकराती हैं, वो पॉइंट कहलाता है फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट। अब जितना बड़ा फॉल्ट होगा उतना बड़ा डैमेज करेगा अर्थक्वेक को। अब इनको मेजर करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो सीज्मोमीटर, दूसरा है रिचर स्केल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सीज्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन डाटा कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक्स और एक पैटर्न कर देता है, वो प्रोड्यूस कर देता है, जिसे हम सीज्मोग्राफ कहते हैं। सीज्मोग्राफ क्या करता है? पैटर्न ऑफ मोशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स को करता है। अब जो ये स्टडी होती है उसे सीज्मोलॉजी कहते हैं, और सीज्मोलॉजी को पढ़ने वाले को सीज्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अब सेफ रहने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें ये करना होता है, सबसे पहले ड्रॉप डाउन ऑन योर हैंड्स सो डैट यू डोंट फॉल सडनली। आप सडनली फॉल ना करें, इसलिए आपको नीचे हो जाना है। ये रहा रिचर स्केल। सो आपको क्या करना है? आर्म को यूज करके आपको कवर कर देना है हेड और नेक को। अब आपको एक हैवी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर होल्ड कर देना है, जिससे आप मूव ना करें जल्दी से। नाउ फिर अर्थक्वेक्स वीक होते हैं वगैरह वगैरह। रिचर स्केल क्या होता है? मैग्नीट्यूड रीड करता है। अगर वो 4 to 5 हुआ तो मॉडरेट होगा, अगर 6 to 7 हुआ तो मेजर होगा, अगर 8 से ऊपर चला गया तो ये सीवियर है। नेक्स्ट इज वोल्केनोज। उससे पहले हम अर्थक्वेक्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Earthquakes and safety measures. The Earth's crust is made up of unevenly shaped slabs of rocks called tectonic plates. The energy stored here causes the tectonic plates to move towards, away, or push against each other. With time, the stored energy and the movement of the tectonic plates build up enormous pressure within the region between the two plates. This intense pressure causes the fault line to give away and the plates move over, against, or apart from each other. The center point of this disturbance is called the focus. From the focus, waves of energy travel towards the Earth's surface, shaking the Earth from within. The point on the surface directly above the focus is called the epicenter. From the epicenter, the energy waves travel in different directions on the Earth's surface, causing vigorous movements on the surface of the Earth, known as an earthquake. A powerful earthquake can destroy an entire city within seconds. Okay. The strength, direction, and duration of an earthquake are measured using a seismograph. The extent of an earthquake is measured on the Richter scale. It cannot be predicted when an earthquake will happen, but there are a few safety measures one must take to prevent injuries. During an earthquake, try to move to open spaces.
Move out of the building through the emergency exits. Use staircase. Never use lifts. If you are indoors, move away from objects that may fall or break. Take shelter under a strong piece of furniture, Okay. preferably a table or desk, and stay there till the tremors stop. Move far away from windows as the glass may shatter and hurt you. If you're in bed, remain there and protect your head with a pillow. If you're outdoors, kneel onto the ground, ensuring you are away from buildings, lamp posts, trees, and electric transformers. If you're in a car, drive slowly to a safe place and stay in the car till the tremors have stopped. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में। नेक्स्ट हमें एनिमेशन से पढ़ा कि एक वोल्केनो होता है, एक रप्चर होता है ऑफ अ प्लैनेट सरफेस और क्रस्ट, जिसमें से मैग्मा और वगैरह वगैरह आते हैं। ऐश गैस और मैग्मा, जिसे हॉट मोल्टन गैस बोलते हैं, वो नीचे से आता है। अब ये जो हॉट मोल्टन रॉक्स होते हैं इन्हें कहा जाता है मैग्मा। अब जिससे ये मतलब क्या होता है, जो मैग्मा होता है ये एक जगह पे जमा हो जाता है। जब ये प्रेशर बिल्ड हो जाता है तब ये बर्स्ट हो जाता है विंड से, जो कि एक हॉलो टॉप होता है क्रेटर से ये बाहर आ जाता है और विंड से भी बाहर आ जाता है। अब ये जो वोल्केनो होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकता है। जो पीपल हैं इसके पास वो जल सकते हैं, और तो और उन्हें बहुत ज़्यादा फेफड़ों की बीमारी लंग डैमेज भी हो सकता है। ये जो भी इसके रास्ते में आता है वो ये तहस महस करके चला जाता है। Volcanoes. तो ऐसे होते हैं वोल्केनोस, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। A volcano is an opening or a rupture on planet's surface or crust which allows hot molten rocks, ash and gases to escape from below the surface. यहाँ से निकलता है। Deep inside the earth, there are hot molten rocks called magma. This magma comes up and collects in a chamber. When the pressure inside the chamber builds up, the magma bursts out from an opening or a crack in the crust of the earth called vent. When magma erupts through the earth's surface, it is called lava. The hollow top of the volcano that is shaped like a bowl is called a crater. ठीक है। Some eruptions are quiet, where lava comes out gently. Some are quite explosive, when lava comes out violently. Lava can destroy anything that comes in its way, such as houses, trees, and animals. On cooling, it forms a volcanic rock. टाटा इग्नियस, ठीक है। इग्नियर रॉक्स होते हैं ये वोल्केनोस मोस्टली 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव, जो कि 10,000 सालों में पहले बार मतलब ये फट चुके हैं और ये फट सकते हैं, कैन बी इरप्टेड एट एनी टाइम। और माउंट ईटना ऑफ इटली और बैरन आइलैंड इन अंडमान आइलैंड इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। डॉर्मेंट वोल्केनो थोड़े से स्लीप मोड में होते हैं, मतलब कि ये कभी भी मतलब ये पहले इरप्ट हो चुके हैं लेकिन
अब इरप्ट हो सकते हैं, लेकिन ये स्लीप मोड में होते हैं, बहुत टाइम के लिए नहीं होते हैं। मोना किया ऑफ हवाइन आइलैंड्स यूएसए में ये है। मोना किया ये यूएसए में है, ये एक है। एक्सटेंट की बात करें तो ये इनएक्टिव होते हैं फॉर 1000 of years। माउंट पोपा इन म्यांमार इज अ एग्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सुनामीज। ये देख सकते हैं, ये पिक्चर एक कैसे सुनामीज आ सकते हैं। सबसे पहले जो अर्थक्वेक्स की रॉक्स होती हैं, द अर्थक्वेक और जो सी शोर होता है वो स्टक हो जाता है, सी का जो वाटर होता है वो स्टक हो जाता है। फिर वेव्स बिगर हो जाती हैं एज वाटर गेट शैलोअर। ठीक है, अभी क्या होता है, ये एक बड़ी सी वॉल होती है ऑफ वाटर। ये अर्थक्वेक्स लैंडस्लाइड के साथ आ सकता है। नाउ ये जो ये होती है थोड़ी सी बड़ी सी लहर जो कि वाटर की होती हैं, जो कि अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड वगैरह वगैरह से हो सकती हैं। अब ये जो इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो हाइट होती है वो 15 मीटर्स तक हो सकती है और 800 किलोमीटर ये 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब 15 है, ठीक है 15 है ये। ठीक है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अब ट्रिक क्या है, अब 15 के आगे एक डेसिमल पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो। ये 0 का एज इट इज ला दो और ये पॉइंट 0 खा गया, हमने 0 डायरेक्टली लगाया, कोई चेंज नहीं किया। अब 0 को इमेजिन करो, फिर से इस पॉइंट को फिर से एक 0 में कन्वर्ट करके यहाँ पे कर दो। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये बड़ा होके 0 बन गया। ठीक है, हमने अभी तक देखा ये पॉइंट 0 बन के हो गया और ये 0 फिर से हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 0 हैं, हमने देखा कि अगर हम उसे 1 के ऊपर 1 करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो हम 8 लगा देंगे। 100 आया, 100 किलोमीटर पर आया। लो जी, नाउ ये अर्थक्वेक्स वोल्केनिक और लैंडस्लाइड से फॉलो होते हैं। इनकी वेव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होती हैं। 26 दिसंबर क्रिसमस के एक दिन बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन फुल एक आई इंडियन ओशन के अंदर, जो कि कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया तक हुई, इंक्लूडिंग इंडिया वर सीवियरली अफेक्टेड। नाउ टाइफून। सो आ गए हैं हम नेक्स्ट एपिसोड पे। सो आज हम करेंगे साइक्लोन्स, आई मीन हरिकेन। सो ये स्टॉर्म होते हैं विद रैपिडली मूविंग विंड्स। इसमें हवाएं भी चलती हैं जो कि स्पिन होती रहती हैं। अब ये सीवियर स्टॉर्म होता है, ये अकम्पनी होता है, मतलब इसके साथ साथ आते हैं बहुत सारे स्ट्रॉन्ग विंड्स और भारी बरसात और कभी कभी स्नो। ये स्नो है, ठीक है, स्नो। और कभी कभी स्लिट पता नहीं होता है कुछ। और जो स्पीड होती है ना विंड की, वो कॉज करता है बहुत ज़्यादा डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट ये है फोटो, मैं अभी दिखाता हूँ, अभी आएगा। ये रहा, ये है हरिकेन। अब ये जो जो होती हैं हमारे ट्रीज, वो क्या होता है, अनप्रूटेड हो जाते हैं, मतलब कि उखड़ जाते हैं। ठीक है, कार्स, ये जो कार है ये ओवरटर्न हो जाती है, मतलब कि ऐसे हो जाती है, या मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जो बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इनकी बात करें, इनके नेम्स की, सो बे ऑफ बंगाल और नॉर्दर्न इंडियन ओशन में ये इसे साइक्लोन कहा जाता है।
टाइफून इन जापान, सदर्न यूएसए में। तो नेक्स्ट इज फ्लड। फ्लड होता है जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है ड्यू टू वेरी वेरी लॉन्ग रेनफॉल और क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स और होम्स को डैमेज करता है। ठीक है, ये हार्म करता है ह्यूमंस और अदर लाइफ स्टॉक्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो कि फार्मर्स यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं ड्रॉट का। जैसे फ्लड में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उसका उल्टा है ड्रॉट। ड्रॉट में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं या तो वो मर जाते हैं भूख से और मर ही जाते हैं सारे लोग ड्यू टू फैमाइन, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, या फिर ऐसे मर जाते हैं या फिर उनकी कोई कमाई नहीं होती क्योंकि क्रॉप्स नहीं उग पाते, स्ट्रीम्स और रिवर ड्राई हो जाती हैं और लैक हो जाती है रेन की। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर हो सकता है ऐसा, ड्रॉट हो सकता है ऐसा, फ्लड, हरिकेन। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो सकता है एक स्पार्क ऑफ लाइटनिंग या फिर हीट जो कि जनरेट होती है रॉटिंग प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर जो हीट होती है वोल्केनोज में से। ठीक है, ये स्टार्ट कर सकती है, या फिर ह्यूमन केयरलेसनेस से भी हो सकती है, मतलब कि पूरा जंगल तहस महस हो जाता है।